Hello. Hello, yes, I'm here. Okay. Fantastic. Oh, looks like Mr. Tirthia. Yes, this is me. Hi there. Um, Gulinder Tasava. Hi, Irfan. Hey, how you doing? Very So good. We can, let's work on that. I think the yeah, Facebook Live. I yeah, have. I'm gonna do that. I'm going to mute my audio so that I will use it only once I am supposed to speak. Thank you, sir. That will be fantastic. Thank you. Sorry, one sec, Irfan. I'm just gonna try Mhm. to add you as here. Your email. What was your email, Irfan? Irfan79 at Gmail. Mr. Memon is there as well. Oh, I can't add G- it. Good morning, Mr. Memon. How do I now? Says you're not a paid subscriber, so Uh, you can. I have the access. I have got access of the Facebook page, so uh, I'll take care of that. Just need to add the URL, and I will accept that here. Which URL? The Mr. Kajju's page, Oh, just share it here. I can share. Just this Kajju. Hold on. All right. So here's the page. Yeah. What do you want me to do? Just share it. And so there is in a setting there is a uh, Zoom share on Facebook page. So you need to have it. Hold on, Good morning, Irfan bhai. Mr. Memon. Good morning, Irfan sir. Good morning. Who's this? This is Prithviraj Srivastava, Director, Gitanjali Senior Secondary School, Sonipat, Haryana. जी Actually, सर I got कैन यू आप अपना ये म्यूट कर देंगे प्लीज प्लीज अभी लाइक लेट अस सेट दिस अप फॉर Can you hear me? Yes, we can hear you. Kaju Saab, how are you? Fine, fine. Irfan, can you hear me? Yeah, everyone can hear you you. can hear me on your mobile, but I think that will be I'm on my iPad. Yes, we can see you. We can hear you, Kaju Saab. Good. So we have most of the guests here. So we still have a few minutes left. So Irfan, you're the host now, so you can manage the session. Can you try, please? Can you try to mute me? Oh, you're muted. Irfan, you're muted. Unmute yourself, Irfan. unmute. Okay, and now I can mute you for sure. Let me share this meeting to the Facebook. Just give me 1 second, please. So, Tasawwur, could you go to the account settings and then you need to allow live streaming in meetings in Facebook.
Account settings, let's see. Recordings, because see, it says Facebook something. Yeah, so if you go to your account setting when you log in, Yeah, one sec. so there must be account setting, and it's like account management basically. So when you go there, then there are some options: allow live streaming the meetings, and Facebook, YouTube, or custom live stream service. The cloud is available. Shows somewhere here. Can't find it. Identify. Participants. Oh, Facebook Zoom. It's on. Add a Facebook tab to the Windows settings to your Mac So profile. yeah, you can add the facebook.com/Justice Karju. Where do I add it? Let me share my screen. So you can see it now, right? This is the settings Right. So there must be like in meeting account advanced. setting. Correct. This Hold is, on. I'm in account settings, right? Yes. Yeah. So this is right thing. Now waiting room. Go down. Go down. Go down. See, online activity. So there must be. Maybe because it's a basic account, you may need a pro or host video, start meetings with host video on. So live streaming meeting in advance. Is there any advanced feature there? Go down all the way. I think See, advanced this should is be. in advanced here. Yes, correct. Remote support, closed captioning, Go down. far end camera control. Go Group down. video. So allow live. Oh, it's right here. It's got Correct. live Yep. streaming. Yep. Turn on. Oh, Yes. Oh, there And you now go. just Facebook. Rest everything, just uncheck them. Just Facebook and save. Okay. And then, so this is there. Now you need to go to the group management. Maybe rooms, So, users. so you need to go to the account management, webinar settings, and then Add a group. account management, account setting. So this is the page. Can I send you the instructions? Yeah, see, I'm the group management. Right. So here is the URL. Just give me 1 second. Here. Oh, see, it says prerequisites, pro, business, or education, enterprise. I don't have that. Oh, okay. Then perhaps we will share. We will share the video then later. Yeah, we'll share the video later. That sounds okay. So I think you are the host, and maybe in the meantime, I can look, maybe I can upgrade it to the account. Let's see. Is this coming on my Facebook page live? Not yet, sir. I think this we did it in the past when it was live on Mr. Did we? Karku's page. Yeah, we did it. I don't remember how we did. I think someone did it, not me.
You can ask Irfan Pulani. Yeah, he was the guy. I think he was doing it. Irfan Pulani. Let me call him quickly if I can. Irfan. Okay, so I need to send him this Zoom call. Hello. And can you let Dr. Kang in? He says he's waiting. हाँ हम कर लेंगे. अभी हम एक वेबिनार कर रहे हैं तो उसके बाद हम 2 घंटा लगेगा हमको. Irfan, can you see Dr. Kang is waiting? I'm sorry, can you say that again? You need to allow Dr. Kang. He is online. He's trying to get in. You need to admit them. I cannot see that. So, Dr. Saab, you do have the right link? Are you logged into the right event? Yeah, can you log out and try again, please? All right. Little technical glitch. Just give us a couple of more minutes and then we will start it. Mr. Memon, can you hear me now? Yeah, I can hear you now. No problem. Excellent, and we can see you very, very clear. Yeah, we last can- time Yes, we were Irfan. having some audio issues. Thanks. Right. We also can see your beautiful shirt that you're wearing today. It's very, very fancy. So And a lot yeah. of greenery behind him. Lot of it greenery. is. Yes, I'm in my holiday home. Is it not in Mumbai? No, it's a morning now, no? I'm in my holiday home, second home. Oh, he was asking if you were in Maharashtra. Or is it are you in a holiday home in Goa? Can you hear us, Mr. Menon? Okay, Mr. Tiket is calling. Can't hear him. Hello? हेलो Yes, गुड मॉर्निंग. good morning. वो कर दिया है, कनेक्ट कर दिया है. एक बार आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा. नहीं, तो आपने कहाँ पे यहाँ इस फोन से आप ज्वाइन कर रहे हैं कि आप जूम से ज्वाइन कर रहे हैं? फोन दूसरा फोन. अच्छा, दूसरा फोन. तो आप जूम में नजर नहीं आ रहे हैं मुझे. आपने ज्वाइन किया अभी? नहीं, हाँ हमने कर दिया है. इसमें लिख के आ रहा है प्लीज वेट द मीटिंग होस्ट विल लेट यू इन ए ज़ूम. Okay, so all right. I think क्या नाम से क्या है? आपने नंबर से क्या है कि किससे क्या है? हमने यहाँ से जो आपने लिंक भेजा था उसी के माध्यम से कर दिया है. Okay, और इसमें जो हमारी वो आईडी है वो राकेश टिकट नाम से है. okay, perfect. मैं अभी आपको I will let you in. मैंने वीडियो ही ऑन नहीं किया था इतनी देर तक. अरे रविश भाई, आप उठ गए सो के?
हाँ हाँ, मैं अलार्म लगा दिया था। मैं सोया ही नहीं था रात में, मुझे सुबह नींद आई 6 बजे। जी मैं एंटर कर रहा हूँ आपको, मैं आपका ढूंढ रहा हूँ अभी। हाँ हाँ, करिए करिए। जी ऑलराइट, तो आप अभी हो गए होंगे अंदर। Hello, Irfan. थैंक यू। Good morning. Good morning, everyone. Okay, so full house. Thank you for joining. रविश भाई कहाँ है आप? ठंडी है वहाँ पे? मैं खास नहीं। Okay. Tasawwur, Yes, thank you there? you. Yes, I'm here. Okay, so I think So we can is start Ritu recording. here? I'm trying to see. Yeah, I'm gonna record. That's a good Ruth point. is here. Yeah. Mhm. Yes. Oh, you have to record, Irfan? I can. Okay, so let me know when you want me to record. Yeah, you can start recording. All right. So it's recording now. All right, perfect. Thank you, Irfan. Good morning, everyone. Good afternoon, evening, people outside India. This is Tasawwur Jalali, the chairman of Ibadat Khana. This movement was started last year under the patronship of Justice Markande Kaju. We started this movement last year in California. The whole idea of the Ibadat Khana movement is a result of collective effort of conscious individuals inspired by humanity and secularism, and is geared towards upholding the dignity of the people of all religions and races. Our guiding principle is based on our conviction that democracy is the best known form of government to promote peace and prosperity, and states should be governed by rule of law. Our goal is to achieve a multi-religious, multi-ethnic, and a prosperous secular fabric in the Indian subcontinent. Irfan, can you please mute everyone? There's a Sure. noise. The core principle, I think you still have some people unmuted. The core principle of Ibadat Khana are the three core principles: foster peaceful, just, and inclusive society, free from fear and violence; formulate social policies that foster secure, just, free, and harmonious societies; build and strengthen public institutions for social development; promote the ideology society for all; work towards development of all sections of society and religions. This is our core philosophy and our principles. We are not a political organization. We don't have any political objectives. We have been working through last year in promoting peace and connecting different ideologies and races and religions, trying to bring them on one platform and bridge the gap. And I'll end it with a couplet, a share. I know most of people are probably Hindi speaking. Hopefully you'll understand. It's by Iqbal from Bali Jibreel, and it's very apt for tonight. I thought it was apt. It says, "Utho mere dunya ke garibon ko jaga do, खाके उमरा के दरो दीवार हिला दो, गरमाओ गुलामों का लहू सोजे यकीन से, कंजिश को फरामाया को शाही से लड़ा दो, सुल्तान जमहूर का आता है जमाना, जो नक्श कोहन तुमको नजर आए मिठा दो, जिस खेत से दहकान को मयसर नहीं हो रोजी, जिस खेत से दहकान को मयसर नहीं हो रोजी, उस खेत के हर खोशे गुंदुम को जला दो, क्यों खालिक व मखलूक में हायल रहे पर्दे, पीराने कलीसा को कलीसा से हटा दो, मैं नाखुश व बेजार हूँ मरमर के सिलों से, मेरे लिए मिट्टी का हरम और बना दो. I think it's so apt for tonight, for our farmers, for our people who are struggling. And with that, I'll try to keep it brief and so that we can wrap up pretty quick. I'm going to hand it over to Ritu Jha. She is the founder editor of Indica News, based in Silicon Valley, and she's our chief spokesperson for Ibadat Khana. Ritu, you please take over. Thank you. So let me start. The slogan, "No farmer, no food," has hit not just the farmers in India, but the people residing 10,000 miles away in the US as well.
Welcome to Ibadat Khana. Good morning and good evening to our members, guest speakers, attendees who believe in a cause. Today's topic is Farm Bill and Farmers a Perspective. It has brought us together again to the open dialogue where eminent speakers today are welcome to share their thoughts, concerns, views, and solutions on how the Indian government should resolve the ongoing farmers' agitation that has gained not just the national attention but international as well. Many have made fun of the farmers' agitation we know lately over pizza and all, but many in support join them at home and from the US. Even today, thousands of supporters rallied in trucks, cars, bikes, and tractors in California and the other US states, showing solidarity towards farmers. I call it the modern day agitation of the 21st century. The government says the new laws are much needed and overdue. The reform measures will benefit farmers from and free them from the clutches of the middlemen. But the farmers are not buying that. They say the laws destroy the government's safety net for food produce and will place them at the mercy of big corporates. So let us hear from what our experts who, who are here today and what they have to narrate with our Ibadat Khana team and members. We hope to have a balanced dialogue. I have not much prepared what to say because it was a last minute preparation. But I have something interesting from Will Rogers, who has said the farmers has to be optimist or he wouldn't be a farmer. So welcome back everybody. This is our fifth round and I think this is the last open dialogue of year 2020. So welcome everybody. And from here, I pass on to Mr. Naren. He's there. Thank you. Well, I'm delighted to see you all and welcome for this very important webinar dedicated to Indian farm bills and farmers. Indeed, it is a somber occasion and a serious issue that has impacting livelihood of over 6 to 700 million farmers and agricultural workers. Though I'm an engineer based at San Francisco in US, but I come from a farming family from Lucknow in Uttar Pradesh. My father has a small land holding of 5 to 10 acres. And that not only sustained our family, but it basically supported all education of all my siblings, myself. So I feel the pain and I know what you're going through. And I'm really excited as well as humbled to see my farmers' brothers and sisters rising and rallying against the farm bill and the sacrifices they are making. And I join you in paying homage to many farmer brothers and sisters who have lost their lives during this agitation and braving the cold of the Delhi winter and standing to this farm bill. So I'm really inspired and encouraged by the solidarity of our farmers and everybody, not only in India, throughout the world. So it's really amazing to see this. So I'm really excited to introduce the host of today's webinar, Irfan Ali. Irfan is our Chief Digital Officer for Ibadat Khana and man of many talents. And in fact, one of the outstanding singer as well. Irfan is a researcher, educator, biker, firefighter, and an accomplished engineer involved in developing assistive technologies for disabled people. Originally, Irfan is from Delhi, but currently he lives in Princeton, New Jersey with his family.
Irfan is very deeply involved in working with several charitable organizations in US and in India. And recently, during the corona pandemic, Irfan has been working with the organization in Delhi to support more than 500 Delhi villagers to make sure that they have food on their table. So 3 cheers to Irfan. And Irfan, welcome. Stage is yours. Thank you so much. I actually did not know all these details about me, but thank you for summarizing. चूंकि हमारे ऑडियंस हैं, कुछ लोग हिंदी स्पीकिंग है, कुछ लोग इंग्लिश स्पीकिंग है, तो हम लोग हिंदी और इंग्लिश को मिला के बात करेंगे. तो because most of the audience are here in United States, I will try to speak in English and in Hindi wherever it is required. So before making any delay, I need to start this program. So you must have seen that farmers in India have been protesting since this controversial bill passed in Indian Parliament in the name of agriculture reforms. These farmers have issues and questions and fear. The fear of these bills are high chances of hoarding. Government wants to get out of the agriculture business and give it to the private companies. And then private companies' objective is to make money, so they will buy at less and sell at high price. So why are these farmers protesting? Government is claiming that these bills will change the life of farmers, but farmers are protesting against these bills. So what is the truth? Why are millions of people on the road in freezing conditions? And during these challenging times when the entire world is dealing with corona pandemic, these people have some questions and concerns. So why are these people staying on the road with their kids? And it appears that they are very determined to take on the government. It is not only in India, but there are agitations against this particular bill and in support of the Indian farmers across the globe, including USA, Canada, Europe, and Australia. In fact, today, there were several rallies in various parts of the USA, including Philadelphia and Sacramento. These people are not against the government, but against the bill. So why the right-wingers are calling them anti-national and Khalistani? Why is government so obdurate? What is the path forward from here? We will try to find the answers of these questions in this webinar. We have a beautiful panel with rational people. Some of them are for the bill. Some have some serious questions about this bill. Let me tell you this is not a debate, but a discussion with the valid argument. और मैं सभी लोगों से बोलना चाहता हूँ जो listener है, अपना please mic mute करके रखिए. So ladies and gentlemen, I welcome all of our guests in this program. Without further ado, I invite our first panelist, who is known to every Indian, a credible name in media. Even today, when media lost its standing, and most of them are called Godi media, he has been awarded Ramnath Goenka Award in journalism for the best journalist twice, and became the 5th Indian journalist to receive the Raman Magsaysay Award. Please welcome none other than Mr. Ravish Kumar. So Irfan, are you recording into the cloud? It is recording. I do not know if it is on the cloud. I don't see that. इरफान भाई, जस्टिस काजू साहब के पेज पर लाइव नहीं जा रहा है ये. Yes, we had some problems, so we will post the video there. Okay. Ravish bhai, are you there? हाँ, मैं हूँ. मेरी आवाज जा रही है? आपकी आवाज बिल्कुल अच्छे से आ रही है. हाँ. बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान आपका और इबादत खाना आंदोलन का, जो अलग-अलग फिल्म और सोच के लोगों को एक मीटिंग पॉइंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. किसान बिल के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ बातें ब्रीफली रखूंगा ताकि औरों को भी वक्त मिले. आदतन ज्यादा बोल जाता हूँ. 20th May 2020 एग्जैक्टली यही डेट है. टाइम्स ऑफ इंडिया में नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत एक आर्टिकल लिखते हैं.
And if you see the language of that article, which says the tone of, जो आर्टिकल का टोन है वो ये कह रहा है कि सुबह होने से पहले इस रात को ही सारे कानून बदल डालो और जो करना चाहते हो कर डालो। इतना इतना एग्रेसिव टोन में वो एक रिफॉर्म के कवर में नियो लिबरल्स बातें लिखी गई हैं। और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए ये 3 लॉ ले आए जाते हैं जब देश में लॉकडाउन है, और उसके इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन अगर आप मीडिया के लैंडस्केप में देखेंगे तो बहुत मिनिमम है। तो आपका इरादा अगर अच्छा होता तो आप ऑर्डिनेंस का रास्ता नहीं चुनते और इस तरह से नहीं करते कि उसकी सूचनाएं लोगों तक बराबर से नहीं पहुंचती। सेकंड पॉइंट, पंजाब के किसान यूं ही दौड़कर दिल्ली नहीं आ गए। आने से पहले हर किसान आंदोलन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ग्राउंड वर्क किया, उस लॉ को समझा है, उसके क्लॉजेस को समझा है और फिर उसको किसानों के बीच जाकर उसकी बातें की हैं। और ये उन सितंबर, जुलाई, अगस्त इन सब महीनों में पंजाब में चल रहा था। और हम नहीं जानते हैं कि पंजाब के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस देश के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से कितने डिफरेंट हैं, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। उनका स्ट्रक्चर बहुत परमानेंट है, वो सिर्फ दिल्ली आने वाले दूसरी जगह के किसान आंदोलनों की तरह नहीं है। वो काफी डेली बेसिस पर ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट इश्यूज को लेकर ऑपरेट करते हैं। तो एक कॉन्सेंसस बनाकर, एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर वो दिल्ली तक आए थे। इसीलिए उनका जो डिटर्मिनेशन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड डिटर्मिनेशन है। वो किसी कंफ्यूजन में नहीं आ गए जो सरकार बताना चाहती है। सरकार ने ऐसे कानून क्यों बनाए कि 2 तरह की मंडी होगी, एक में टैक्स लगेगा और एक में टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको ओपन मार्केट में इतना भरोसा है, हालांकि उस ओपन मार्केट में आप कोई भी ऐसा सेक्टर आज की तारीख में नहीं बता सकते हैं। आफ्टर 6 years ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, सब फेल है। चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, सब फेल है। तो फेलियर के इतने सारे रिकॉर्ड्स, हाँ पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल है, आप बहुत सारे चुनाव जीतते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, वो अलग बात है। तो इतने सारे मार्केट के फेलियर को लेकर इसका मतलब है कि आप जिस ओपन मार्केट को आप प्रपोज कर रहे हैं उसे भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका भरोसे का लेवल ये है उस ओपन मार्केट का। तो दूसरी तरफ आपने ये जो कानून बनाया है, एसडीएम के पास आपने राइट्स दिया है। आपने कानून बनाने के बाद लोगों से कहा कि ठीक है हम मंडी में चेंज कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें टैक्स लगा सकती है। ये आप पहले क्यों नहीं कर पाए? आप किस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना चाहते थे? अभी मिस्टर अडानी की कंपनी ने अखबार में विज्ञापन दिया है, किन अखबारों में विज्ञापन दिया है आप वो भी समझ सकते हैं। लेकिन ये कोइंसिडेंस था कि इस बिल के आने के पहले पंजाब में या बिहार में एफसीआई करार करती है कि वो स्टोरेज की फैसिलिटी, कैपेसिटी बनाएंगे। सिर्फ अडानी साहब ही बना लेते हैं। वो ठीक है कि एफसीआई की अनाज को वहां पर स्टोर कर रहे हैं, पर ये तो शुरुआत है ना। तो इसलिए किसानों ने देखा कि पहले साइलोज बन गए हैं। पंजाब के किसानों ने ये देखा अपनी आंखों से कि ये तो सामने बना हुआ है, और आज से नहीं बना है, कई साल हो गए उससे बना हुआ है, और अब ये कानून आया है। तो क्या उनके सामने एक नया सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। सेकंड, एमएसपी को लेकर सुरजीत भल्ला रिप्रेजेंटेटिव हैं वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में, सरकार के ही हैं। आप इन सब की बातें देखिए, नीति आयोग का डॉक्यूमेंट देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का 2019 में ओपन ऑन रिकॉर्ड माइक पर कही गई बात है, वो ब्लूमबर्ग क्विंट के वेबसाइट पर है कि एपीएमसी खत्म हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट, स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एट 75, ये 2018 में लेट अरुण जेटली ने इसको रिलीज किया था, अमिताभ कांत भी थे। उस रिपोर्ट को पढ़ी, उसमें लिखा है एमएसपी को खत्म कर देना चाहिए।
और उसकी जगह कुछ और व्यवस्था लानी चाहिए। तो अगर सरकार के डॉक्यूमेंट में और उसके आसपास के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कर रही है एपीएमसी खत्म कर दो, तो आप इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले आपने पार्लियामेंट का इंतजार नहीं किया। आप एक ऐसा कानून लेकर आए जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट्स है। आप मॉडल एक्ट बना सकते थे, लेकिन आपने सारे स्टेट्स के अधिकार को कुचलते हुए इस कानून को इम्पोज किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि पहले की सरकारों ने भी किया, लेकिन आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो आप खड़े नहीं कर रहे हैं ना। अगर पहले की सरकारों ने गलत किया है तो उस गलत के आधार पर आप अपने आप को सही कहना चाहते हैं। तो इसलिए इस कानून में एसडीएम को बहुत पावर दे दिया गया, एक नया कोर्ट का लीगल स्ट्रक्चर बनाया गया, उस पर किसी तरह की डिबेट नहीं हुई इस देश में। और आप जानते हैं कि मीडिया की क्या हालत है। पंजाब कितनी दूर है यहाँ से, इतना सेलिब्रेटेड एक सेगमेंट है हमारे देश का। किसी भी गाने में, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके सामने एक रेस्तरां है, कल शादियां हो रही थी और सारे गाने पंजाबी बज रहे थे। तो इतना कनेक्शन है, जबकि वो लोग पंजाबी नहीं थे कि वो पंजाबी गाने पर डांस कर रहे हैं। पूरे एग्रीकल्चर, जितने भी फार्मर के आप पिक्चर देखें तो वो पंजाब रिप्रेजेंट करता है। आपने किसी मीडिया ने जाकर देखा नहीं कि वो किस तरह से उस कानून को लेकर समझ रहे हैं और क्या बातें हैं। तो इसलिए ये एक धारणा सरकार जो बना रही है कंफ्यूजन वाली, वो ठीक नहीं है। वो उसने पहले बताया खालिस्तानी है, फिर कहा ये सिर्फ पंजाबी लोग हैं, फिर कहा ये अमीर लोग हैं। जबकि रितिका खेड़ा के डॉक्यूमेंट से, रिसर्च ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें साफ है कि जब इस देश में 90% किसान स्मॉल होल्डिंग्स वाला है, तो बड़े किसान कहां से आ गए? वो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं जिन्होंने एमएसपी का बेटर फायदा उठाया है। अगर बिहार में एमएसपी होती और पंजाब हरियाणा के किसानों की तरह वहां एक स्ट्रक्चर बना होता, तो बिहार के किसान भी उतने गरीब नहीं होते। पर उसकी बात हुई नहीं, अब बात हो रही है। एक सेकंड पॉइंट ये है, मैं बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन का जो अभी तक ट्रेंड रहा है, वो दिल्ली तक आने का ट्रेंड रहा है और आकर फिर चले जाने का ट्रेंड रहा है। उसमें कई तरह के फूट होते रहे हैं। आप देखिए कि इससे 2 साल पहले किसान संसद होती है दिल्ली में, और कई तरह के संगठन दिल्ली आते हैं बहुत बड़ी संख्या में। वो आते हैं, अपना गुलाबी गुलाबी कार्यक्रम चले जाते हैं, करते हैं, एक मंच पर भाषण देते हैं और चले जाते हैं। और इस दिल्ली में जब इतनी बड़ी संख्या में फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो उनका कहीं पे कवरेज नहीं होता है। एक किसान चैनल है इस देश में जो जनता के पैसे से चलता है, फार्मर्स न्यूज चैनल, मोदी सरकार ने ही इसका बनाया, उसमें किसानों का प्रोटेस्ट कवर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं है। अब वो कर रही है कि हाँ, ये अगर ये 10,000 किसान हैं तो इस संख्या को लेसर बताने के लिए वो बड़े बड़े किसान सम्मेलन कर रही है। मैसिव लेवल पे उसका कैंपेन चल रहा है जो कोई किसान आंदोलन मैच नहीं कर सकता है उसको। थैंकफुली उन्होंने अपना एक अखबार निकाला है, ट्रॉली टाइम्स। पर आप देखिए कि अभी तक जितने भी किसान आंदोलन का हिस्ट्री है वो टूटने की हिस्ट्री है। और इसीलिए पहले दिन से इस कॉन्फिडेंस में काम किया गया, बातचीत के अलावा, कि ये तोड़ दिया जाएगा और ये टूट जाएगा, और ये होता भी है और ये होगा भी। तो ये जो लड़ाई है अब ये 3 बिल की नहीं है। सरकार ने अपना रास्ता चुन लिया है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे, तो ये डेड एंड पे पहुंच गया है। क्या इसका फेट शाहीन बाग की तरह होगा जिसके हटाने या चलते रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थका देने वाली बहस होती रहेगी, या वाकई अब किसान वापस टेबल पर जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि सरकार जाएगी। हाँ, इस आंदोलन में जरूर शाहीन बाग का असर है। ये डिटर्मिनेशन दिया शाहीन बाग ने कि हाँ, रुककर हर आंदोलन को दिल्ली तक आना और लेकर चले जाना और उसको मीनिंगलेस बनाना अब नहीं हो सकता है। किसान फार्मर्स लीडर जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी और रेलेवेंस की ये लास्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी किसान आंदोलन का जुड़ा हुआ इसमें अगर है, अगर वो सुन रहा है, उन्हें ये ठीक ठीक समझना चाहिए कि इस देश की राजनीति से किसान वर्ड का वैल्यू खत्म हो गया है।
और इसे खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही है, क्योंकि वो सरकार के कमरे में बैठकर उसे मालिक हुजूर बना देते हैं और आपस में बंटकर टूट फूट कर चले आते हैं। एक चिट्ठी चाहिए होती है उन्हें, फेस सेविंग चिट्ठी, जिसे बाहर जाकर बता सके कि हाँ हाँ ये बातें हो गई, और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये लड़ाई हिंदुस्तान में आगे की लड़ाई के लिए फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बचेंगे, उनका रेलेवेंस बचेगा, फार्मर्स नाम का कोई पॉलिटिकल वेटेज रहेगा पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, उसकी भी है। इसीलिए देखिए कि आप कितने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश चले जाते हैं, जहां किसान कुछ और डिमांड कर रहा है लेकिन उसे भेजने लगते हैं। ये उनका बहुत सक्सेसफुल अच्छा सिस्टम है, वो पैसा भेज देते हैं ऑनेस्टली। इसलिए वो सारे कंप्लेन, सारे इश्यूज को क्रश करते हुए पैसा भेज देते हैं, और जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट में भी पैसा जाएगा और वो भी वोट देंगे वापस इन्हीं को। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ये बात, इसी के कॉन्फिडेंस पे इस सारे इश्यू को खत्म किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के किसान जो समझ कर आए हैं कि ये लॉ, ये बिल हमारे फेवर में नहीं है, वो अब अपने वजूद की ज्यादा बड़ी लड़ाई में फंस गए हैं और उन्हें पर हैं, कल कहीं और होगा। मैं एक ऐसी मायूसी वाले भविष्य को देख रहा हूं जो डर लग रहा है कि इतनी उम्मीद से आए हैं, क्योंकि पंजाब के किसानों में बहुत सारे खेती की क्राइसिस को वो देखते हैं, झेलते हैं, बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन एक उम्मीद रहती है उनकी जिंदगी में। वो शायद पंजाबियत से आती है, पंजाब की फिजा से, आबो हवा से आती है। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं उन्हें मायूसी ना घेर ले, वो उदास और निराश ना हो जाएं कि वो दिल्ली तक आए और उनकी बात ना सुनी गई, उन पर तरह तरह के तोहमत लगाए गए। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स में देखे जाने चाहिए कि सरकार के भीतर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एमएसपी खत्म करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एपीएमसी खत्म करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, और फ्रंट में जो कानून बनाया गया है वो कभी लगता है कि नहीं एपीएमसी खत्म करने के लिए नहीं है, एमएसपी खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन दरअसल जो पीछे के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बैकग्राउंड में इस कानून को देखा जाना चाहिए। इसलिए आपको 20 मई का अमिताभ कांत का आर्टिकल पढ़ने के लिए कह रहा हूं। 2018 में जो स्ट्रेटेजी पेपर एग्रीकल्चर पर नीति आयोग ने लॉन्च किया था उसे पढ़ने के लिए कह रहा हूं। थैंक यू रवीश भाई, शुक्रिया आपका बहुत इंसाइट देने के लिए। आपकी रिसर्च हमेशा की तरह उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी हमेशा होती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे स्पीकर्स हैं यहाँ पर, अजीत अंजुम साहब भी ने भी ज्वाइन किया है, राकेश टिकैत साहब ऑलरेडी हैं यहाँ पर। तो अगर राकेश टिकैत साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं, सर मेरी आवाज आपको आ रही है? शुक्रिया इरफान आपका और इबादत खाना आंदोलन का, जो अलग अलग फिल्म और सोच के लोगों को एक मीटिंग पॉइंट पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। किसान बिल के कॉन्टेक्स्ट में मैं कुछ बातें ब्रीफली रखूंगा ताकि औरों को भी वक्त मिले, आदतन ज्यादा बोल जाता हूँ। 20th मई 2020 एग्जैक्टली यही डेट है। टाइम्स ऑफ इंडिया में नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत एक आर्टिकल लिखते हैं, एंड इफ यू सी द लैंग्वेज ऑफ दैट आर्टिकल which says the tone of, जो आर्टिकल का टोन है वो ये कह रहा है कि सुबह होने से पहले इस रात को ही सारे कानून बदल डालो और जो करना चाहते हो कर डालो। इतना एग्रेसिव टोन में वो एक रिफॉर्म के कवर में नियोलिबरल्स बातें लिखी गई हैं। और 5 जून को ऑर्डिनेंस के जरिए ये 3 लॉ ले आए जाते हैं जब देश में लॉकडाउन है, और उसके इंफॉर्मेशन का डिसमिनेशन अगर आप मीडिया के लैंडस्केप में देखेंगे तो बहुत मिनिमम है। तो आपका इरादा अगर अच्छा होता तो आप ऑर्डिनेंस का रास्ता नहीं चुनते और इस तरह से नहीं करते कि उसकी सूचनाएं लोगों तक बराबर से नहीं पहुंचती। सेकंड पॉइंट, पंजाब के किसान यूं ही दौड़कर दिल्ली नहीं आ गए,
आने से पहले हर किसान आंदोलन ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफी ग्राउंड वर्क किया, उस लॉ को समझा है, उसके क्लॉजेस को समझा है, और फिर उसको किसानों के बीच जाकर उसकी बातें की हैं। और ये सितंबर, जुलाई, अगस्त, इन सब महीनों में पंजाब में चल रहा था। और हम नहीं जानते हैं कि पंजाब के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस देश के फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन से कितने डिफरेंट हैं, हमें कोई भी आइडिया नहीं है। उनका स्ट्रक्चर बहुत परमानेंट है, वो सिर्फ दिल्ली आने वाले दूसरी जगह के किसान आंदोलनों की तरह नहीं है। वो काफी डेली बेसिस पर ऑपरेट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इश्यूज को लेकर ऑपरेट करते हैं। तो एक कॉन्सेंसस बनाकर, एक अंडरस्टैंडिंग बनाकर वो दिल्ली तक आए थे। इसीलिए उनका जो डिटर्मिनेशन है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड डिटर्मिनेशन है। वो किसी कंफ्यूजन में नहीं आ गए जो सरकार बताना चाहती है। सरकार ने ऐसे कानून क्यों बनाए कि दो तरह की मंडी होगी, एक में टैक्स लगेगा और एक में टैक्स नहीं लगेगा। अगर आपको ओपन मार्केट में इतना भरोसा है, हालांकि उस ओपन मार्केट में आप कोई भी ऐसा सेक्टर आज की तारीख में नहीं बता सकते हैं, आफ्टर 6 years ऑफ बीइंग इन द गवर्नमेंट, चाहे वो स्किल इंडिया हो, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, सब फेल है। चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, सब फेल है। तो फेलियर के इतने सारे रिकॉर्ड्स, हाँ पॉलिटिकली बहुत सक्सेसफुल है, आप बहुत सारे चुनाव जीतते हैं, आपको कोई हरा नहीं सकता, वो अलग बात है। तो इतने सारे मार्केट के फेलियर को लेकर इसका मतलब है कि आप जिस ओपन मार्केट को आप प्रपोज कर रहे हैं उसे भी आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। तो आपका भरोसे का लेवल ये है उस ओपन मार्केट का। तो दूसरी तरफ आपने ये जो कानून बनाया है, एसडीएम के पास आपने राइट्स दिया है। आपने कानून बनाने के बाद लोगों से कहा कि ठीक है, हम मंडी में चेंज कर देंगे, स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो उसमें टैक्स लगा सकती है। ये आप पहले क्यों नहीं कर पाए? आप किस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाना चाहते थे? अभी मिस्टर अडानी की कंपनी ने अखबार में विज्ञापन दिया है, किन अखबारों में विज्ञापन दिया है आप वो भी समझ सकते हैं। लेकिन ये कोइंसिडेंस था कि इस बिल के आने के पहले पंजाब में या बिहार में एफसीआई करार करती है कि वो स्टोरेज की फैसिलिटी, कैपेसिटी बनाएंगे। सिर्फ अडानी साहब ही बना लेते हैं। वो ठीक है कि एफसीआई की अनाज को वहां पर स्टोर कर रहे हैं, पर ये तो शुरुआत है ना। तो इसलिए किसानों ने देखा कि पहले साइलोज बन गए हैं। पंजाब के किसानों ने ये देखा अपनी आंखों से कि ये तो सामने बना हुआ है, और आज से नहीं बना है, कई साल हो गए उससे बना हुआ है, और अब ये कानून आया है। तो क्या उनके सामने एक नया सिस्टम खड़ा किया जा रहा है। सेकेंड, एमएसपी को लेकर सुरजीत भल्ला रिप्रेजेंटेटिव हैं वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ में, सरकार के ही हैं। आप इन सब की बातें देखिए, नीति आयोग का डॉक्यूमेंट देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर का 2019 में ओपन ऑन रिकॉर्ड माइक पर कही गई बात है, वो ब्लूमबर्ग क्विंट के वेबसाइट पर है कि एपीएमसी खत्म हो गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट, ऑफिशियल रिपोर्ट, स्ट्रेटजी फॉर इंडिया एट 75, ये 2018 में लेट अरुण जेटली ने इसको रिलीज किया था, अमिताभ कांत भी थे। उस रिपोर्ट को पढ़ी, उसमें लिखा है एमएसपी को खत्म कर देना चाहिए और उसकी जगह कुछ और व्यवस्था लानी चाहिए। तो अगर सरकार के डॉक्यूमेंट में और उसके आसपास के लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है एपीएमसी खत्म कर दो, तो आप इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले आपने पार्लियामेंट का इंतजार नहीं किया। आप एक ऐसा कानून लेकर आए जो एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट्स है। आप मॉडल एक्ट बना सकते थे, लेकिन आपने सारे स्टेट्स के अधिकार को कुचलते हुए इस कानून को इम्पोज किया। हाँ, आप कह सकते हैं कि पहले की सरकारों ने भी किया, लेकिन आप कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी तो आप खड़े नहीं कर रहे हैं ना। अगर पहले की सरकारों ने गलत किया है तो उस गलत के आधार पर आप अपने आप को सही कहना चाहते हैं। तो इसलिए इस कानून में एसडीएम को बहुत पावर दे दिया गया, एक नया कोर्ट का लीगल स्ट्रक्चर बनाया गया, उस पर किसी तरह की डिबेट नहीं हुई इस देश में। और आप जानते हैं कि मीडिया की क्या हालत है। पंजाब कितनी दूर है यहां से, इतना सेलिब्रेटेड एक
सेगमेंट है हमारे देश का, किसी भी गाने में, मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ उसके सामने एक रेस्तरां है, कल शादियां हो रही थी और सारे गाने पंजाबी बज रहे थे। तो इतना कनेक्शन है, जबकि वो लोग पंजाबी नहीं थे, कि वो पंजाबी गाने पर डांस कर रहे हैं। पूरे एग्रीकल्चर, जितने भी फार्मर के आप पिक्चर देखें तो वो पंजाब रिप्रेजेंट करता है उसको। आपने किसी मीडिया ने जाकर देखा नहीं कि वो किस तरह से उस कानून को लेकर समझ रहे हैं और क्या बातें हैं। तो इसलिए ये एक धारणा सरकार जो बना रही है कंफ्यूजन वाली, वो ठीक नहीं है। वो उसने पहले बताया खालिस्तानी है, फिर कहा ये सिर्फ पंजाबी लोग हैं, फिर कहा ये अमीर लोग हैं, जबकि रितिका खेड़ा के डॉक्यूमेंट से रिसर्च ने जो आर्टिकल लिखा है उसमें साफ है कि जब इस देश में 90% किसान स्मॉल होल्डिंग्स वाला है, तो बड़े किसान कहां से आ गए? वो स्मॉल होल्डिंग फार्मर्स हैं जिन्होंने एमएसपी का बेटर फायदा उठाया है। अगर बिहार में एमएसपी होती और पंजाब हरियाणा के किसानों की तरह वहां एक स्ट्रक्चर बना होता, तो बिहार के किसान भी उतने गरीब नहीं होते। पर उसकी बात हुई नहीं, अब बात हो रही है। एक सेकंड पॉइंट ये है, मैं बताना चाहता हूं कि किसान आंदोलन का जो अभी तक ट्रेंड रहा है, वो दिल्ली तक आने का ट्रेंड रहा है और आकर फिर चले जाने का ट्रेंड रहा है। उसमें कई तरह के फूट होते रहे हैं। आप देखिए कि इससे 2 साल पहले किसान संसद होती है दिल्ली में और कई तरह के संगठन दिल्ली आते हैं, बहुत बड़ी संख्या में। वो आते हैं, अपना गुलाबी गुलाबी कार्यक्रम चले जाते हैं, करते हैं, एक मंच पर भाषण देते हैं और चले आते हैं। और इस दिल्ली में जब इतनी बड़ी संख्या में फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं तो उनका कहीं पे कवरेज नहीं होता है। एक किसान चैनल है इस देश में जो जनता के पैसे से चलता है, फार्मर्स न्यूज चैनल, मोदी सरकार ने ही इसका बनाया, उसमें किसानों का प्रोटेस्ट कवर नहीं होता है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं है। अब वो कर रही है कि हाँ, ये अगर ये 10,000 किसान हैं तो इस संख्या को लेसर बताने के लिए वो बड़े बड़े किसान सम्मेलन कर रही है। मैसिव लेवल पे उसका कैंपेन चल रहा है, जो कोई किसान आंदोलन मैच नहीं कर सकता है उसको। थैंकफुली उन्होंने अपना एक अखबार निकाला है, ट्रॉली टाइम्स। पर आप देखिए कि अभी तक जितने भी किसान आंदोलन का हिस्ट्री है वो टूटने की हिस्ट्री है, और इसीलिए पहले दिन से इस कॉन्फिडेंस में काम किया गया बातचीत के अलावा कि ये तोड़ दिया जाएगा और ये टूट जाएगा, और ये होता भी है और ये होगा भी। तो ये जो लड़ाई है अब ये 3 बिल की नहीं है। सरकार ने अपना रास्ता चुन लिया है कि हम कानून को वापस नहीं लेंगे, तो ये डेड एंड पे पहुंच गया है। क्या इसका फेट शाहीन बाग की तरह होगा, जिसके हटाने या चलते रहने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में थका देने वाली बहस होती रहेगी, या वाकई अब किसान वापस टेबल पर जाएंगे? मुझे नहीं लगता कि सरकार जाएगी। हाँ, इस आंदोलन में जरूर शाहीन बाग का असर है। ये डिटर्मिनेशन दिया शाहीन बाग ने कि हाँ, रुककर हर आंदोलन को दिल्ली तक आना और लेकर चले जाना और उसको मीनिंगलेस बनाना अब नहीं हो सकता है। किसान फार्मर्स लीडर जो हैं वो अपनी आइडेंटिटी और रेलेवेंस की ये लास्ट लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई भी किसान आंदोलन का जुड़ा हुआ इसमें अगर वो सुन रहा है, उन्हें ये ठीक ठीक समझना चाहिए कि इस देश की राजनीति से किसान वर्ड का वैल्यू खत्म हो गया है, और इसे खत्म करने में सबसे बड़ी भूमिका उन्हीं की रही है, क्योंकि वो सरकार के कमरे में बैठकर उसे मालिक हुजूर बना देते हैं और आपस में बंटकर टूट फूट कर चले आते हैं। एक चिट्ठी चाहिए होती है उन्हें, फेस सेविंग चिट्ठी, जिसे बाहर जाकर बता सके कि हाँ हाँ ये बातें हो गई, और ग्राउंड पर कुछ भी नहीं होता है। तो ये लड़ाई हिंदुस्तान में आगे की लड़ाई के लिए फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन बचेंगे, उनका रेलेवेंस बचेगा, फार्मर्स नाम का कोई पॉलिटिकल वेटेज रहेगा पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में, उसकी भी है। इसीलिए देखिए कि आप कितने कॉन्फिडेंस से प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश चले जाते हैं, जहां किसान कुछ और डिमांड कर रहा है लेकिन उसे भेजने लगते हैं। ये उनका बहुत सक्सेसफुल अच्छा सिस्टम है, वो पैसा भेज देते हैं ऑनेस्टली। इसलिए वो सारे कंप्लेन, सारे इश्यूज को क्रश करते वो पैसा भेज देते हैं, और जो अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अकाउंट में भी पैसा जाएगा और वो भी वोट देंगे वापस इन्हीं को। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए।
तो ये बात, इसी के कॉन्फिडेंस पे इस सारे इशू को खत्म किया जा रहा है। लेकिन पंजाब के किसान जो समझ कर आए हैं कि ये लॉ, ये बिल हमारे फेवर में नहीं है, वो अब अपने वजूद की ज्यादा बड़ी लड़ाई में फंस गए हैं और उन्हें पर हैं, कल कहीं और होने का। मैं एक ऐसी मायूसी वाले भविष्य को देख रहा हूं जो डर लग रहा है कि इतनी उम्मीद से आए हैं, क्योंकि पंजाब के किसानों में बहुत सारे खेती की क्राइसिस को वो देखते हैं, झेलते हैं, बहुत तकलीफ में हैं, लेकिन एक उम्मीद रहती है उनकी जिंदगी में, वो शायद पंजाबियत से आती है, पंजाब की फिजा से, आबो हवा से आती है। मुझे इस बात की चिंता है कि कहीं उन्हें मायूसी ना घेर ले, वो उदास और निराश ना हो जाएं कि वो दिल्ली तक आए और उनकी बात ना सुनी गई, उन पर तरह तरह के तोहमत लगाए गए। तो कई मल्टीपल फैक्टर्स में देखे जाने चाहिए कि सरकार के भीतर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एमएसपी खत्म करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एपीएमसी खत्म करने के डॉक्यूमेंट्स हैं, और फ्रंट में जो कानून बनाया गया है वो कभी लगता है कि नहीं एपीएमसी खत्म करने के लिए नहीं है, एमएसपी खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन दरअसल जो पीछे के डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हीं के बैकग्राउंड में इस कानून को देखा जाना चाहिए। इसलिए आपको 20 मई का अमिताभ कांत का आर्टिकल पढ़ने के लिए कह रहा हूं। 2018 में जो स्ट्रेटेजी पेपर एग्रीकल्चर पर नीति आयोग ने लॉन्च किया था उसे पढ़ने के लिए कह रहा हूं। थैंक यू। थैंक यू रवीश भाई, शुक्रिया आपका बहुत इंसाइट देने के लिए। आपकी रिसर्च हमेशा की तरह उतनी स्ट्रॉन्ग है जितनी हमेशा होती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे स्पीकर्स हैं यहाँ पर, अजीत अंजुम साहब भी ने भी ज्वाइन किया है। राकेश टिकैत साहब ऑलरेडी हैं यहाँ पर, तो अगर राकेश टिकैत साहब मेरी बात सुन पा रहे हैं, सर मेरी आवाज आपको आ रही है?